Assalamu alaikum friends. Hello everyone. So let's learn our next chapter, financial statements of companies, right? In that we are starting with unit 2 cash flow statement. So uh, today we will go through cash flow statements. Before moving to the chapter, I wanted to ask you all whether you remember or recall AS3 cash flow statement, where we understood cash flow statement with much details, right? We know each and every concept there, we learned each and every concepts there. So here theoretically I will move very much fast, hoping that you will recall each and every concepts, right? Just will give you a reminder so that you can recall it easily. After that we will move directly to the practical illustrations. Actually this is one practical chapter, right? All the concepts were covered in AS3, right? How to classify all these activities, and right, which item will be classified under which activity, we have seen that each and everything. Here we just need to compute the sums, right? In reality we need to prepare financial statements of the given examples. So nothing to waste much time on it, and let's start. See, cash flow statement is generally to assess the company's liquidity, right, or your earnings and solvency position, right? It helps to make you understand the changes in cash and cash equivalents, from where how much cash was generated from your trading activities, what is the cash surplus from operating cash surplus, and how you have applied it in your fixed investments, right? How much you have paid your dividend tax, and how much you have plowed back, how much you have retained your profit in your business, right? It is also a useful tool for your financial planning, right? It explains you cash movements, right? And you can say sources of cash: you issue share capital, you issue debentures, right? You would take loans, right? Or you sell your investments, your fixed assets, or you have your operating incomes, and from that you apply it on your redemptions, that is a redemption of preference shares, debentures, right? You repay your loans, you purchase investments, new fixed assets, you pay taxes, you pay dividends, right? And if you have any losses, then you apply your cash to that also, right? Cash includes bank also. Actually here we seen that not only cash but cash and cash equivalents is the word, right? Cash is the cash in hand. And what is cash equivalents? Demand deposits with bank, right? Or else any short term highly liquid investments or securities with a lower maturity period, say 3 months, right? So whichever is readily realizable in cash will be termed as your cash equivalents. Then see, actually our cash flow statement is divided into three parts, as you all know. Which three parts? Operating activities, investing activities, and financing activities. We also seen that operating activities can be computed by two methods, that is direct method and indirect method, right? And investing and financing will be the same. Now, what was operating activity? Operating, you can, as the word name of the word suggests, you can understand that operating means your principal revenue generating activity, right? The earnings that you earn from your business operations, right? Thereafter we seen that investing activities, which is see, just a second for move to operating activities. What does it indicate? How much extent your cash is generated from your operations, right? And it helps to maintain your operating capabilities to pay dividends, repay your loans, and make new investments. You can also know about your how much you have financed through your working capital, right? Yes, moving towards investing activities. Investing activities, you knew that whatever investments you do in fixed assets, right, or long term investments, that will all be covered in investing activities, which are not covered in cash equivalents, right? Then you can see that uh, financing activities, that is where owner's capital is changed, or there is the changes in composition and size of owner's capital, which will also include preference shares and the borrowings of entities, that it will be termed to be your financing activity. Now,
how to calculate this all activities, right? So they have given certain examples. Please have a look over it, because it will be easy for you to understand and compute your further sums, right? See, if you can say that operating activity, then you have example sale of goods, rendering of services, वहाँ से रिसिप्ट आपको हुआ, फिर फीस कमीशन और वह ऐसा कोई रेवेन्यू हुआ है आपको, फिर सप्लायर्स को पेमेंट किया, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट्स किया, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल से आपको रिसिप्ट मिला हुआ है। तो ये सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दो तरह से होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, जो भी ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो दिखा देते हैं और उसमें से ग्रॉस पेमेंट्स माइनस कर देते हैं। ये आपका हुआ डायरेक्ट मेथड, बहुत ईजी है, बहुत समझ, मतलब ये डायरेक्ट मेथड आपके एग्जामिनेशंस में आ गया तो इट इज़ अ कैश मार्क्स फॉर यू, राइट। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है ना। तो क्या वहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट जो भी ईयर का होता है रिपोर्टिंग पीरियड का, वो लेके आपको सभी आइटम्स को एडजस्ट करना होता है, जैसे कि नॉन कैश आइटम्स है, राइट, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एडजस्ट करना होता है, वो सभी दिखा के आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों मतलब बताया। और सी मोर अप्रोप्रिएट इज़ डायरेक्ट मेथड, जनरली डायरेक्ट मेथड ही यूज़ होता है और बहुत अप्रोप्रिएट है वो, क्योंकि आपको वहाँ से समझ में आएगा कितना आपका रिसिप्ट्स है, कितना आपका ऑपरेटिंग पेमेंट्स है। सी, लेकिन जहाँ पे ऐसा कुछ है कि इंफॉर्मेशन आपको नहीं अग्रीगेट हो पा रही है, तब जाके आप उसको इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बोलते हैं कि जो भी ग्रॉस रिसिप्ट्स है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, जो भी ग्रॉस पेमेंट्स है, वो सभी आपको चाहिए, ठीक है। फिर वो सभी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम से मिल जाती है, ठीक है ना। और अगर इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करें, सी, आपको डायरेक्टली कैश सेल्स कितना हुआ, कैश परचेजेस कितना हुआ, कितना कितना पेमेंट्स हुआ है ट्रेड पेबल्स को, फिर कितना रिसिप्ट्स हुआ है ट्रेड रिसीवेबल से, और या फिर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ इंटरेस्ट इनकम से, अदर कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, तो वो सभी आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा। और इनडायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट जो आपका आया है ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, उसको एडजस्ट करना है। कौन सी चीज़ों से, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन योर ऑपरेटिंग रिसीवेबल्स, चेंजेस इन योर ट्रेड पेएबल्स, राइट, दैन द नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, राइट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, राइट, दैन अदर आइटम्स लाइक फ्यू फिनांसिंग एंड इन्वेस्टिंग आइटम्स। जैसे मान लो इंटरेस्ट पे किया आपने डिबेंचर्स को, तो वो पीएनएल में ही जाता है, तो वो नेट प्रॉफिट में इफेक्ट दे के आया हुआ है, तो वो तो एक्चुअली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो जो इंटरेस्ट पे किया आपने डिबेंचर्स पर, वो आपको ऐड बैक करना होगा नेट प्रॉफिट में। वैसे कोई इंटरेस्ट इनकम हुई है, डिविडेंड पे हुआ, तो जो भी इन्वेस्टिंग फिनांसिंग एक्टिविटी के लगता सा जो नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होकर आ रहा है, उसको भी आपको एडजस्ट करना होगा नेट प्रॉफिट में, ठीक है। और वैसे करके आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वो मिल जाएगा कैश फ्लो, ठीक है ना। एक्चुअली तो इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे फेल कर जाता है। कैसे फेल हो जाता है, बिकॉज इट डजंट प्रोवाइड यू द ब्रेकअप ऑफ योर कैश ऑपरेशंस, राइट। सो उन्होंने एक परफॉर्मा दिया हुआ है इनडायरेक्ट मेथड का, आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट, फिर एड बैक किया है उन्होंने नॉन कैश एक्सपेंसेस को, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ठीक है, और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुआ था आपको, उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। और उसमें जो भी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है उसको आप ऐड या लेस कर देते हैं। सी, उन्होंने बोला है इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब एक बात समझें, एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ तो उसका मीनिंग क्या है, अपन ये पहले समझ लेते हैं। सी, एसेट्स पहले थे 1 लाख के, फिक्स एसेट कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अभी उसमें हमने दूसरा एक फिक्स एसेट 1,50,000 का परचेज़ किया, ठीक है, 1.5 लाख का। तो ये आपका टोटल हुआ 2.5 लाख एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इंक्रीज़ आया है 1 लाख से 2.5 लाख का, ठीक है, वो इंक्रीज़ में हुआ क्या है, एक्चुअल में परचेज़ हुआ है फिक्स एसेट का। उस वजह से हुआ क्या है, आपका कैश आउटफ्लो हुआ होगा, आपने पेमेंट किया होगा उस पार्टी को। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए आउटफ्लो हुआ। अब कोई भी एसेट्स का एग्जांपल ले लो, ट्रेड रिसीवेबल्स है, एसेट्स है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, तो आपको एक चीज़ समझ में आता है। अगर बैंक, छोटा सा छोटा एग्जांपल, बैंक अगर बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीज़ था स्टार्टिंग में, और अभी
1.5 लाख हो गया, तो ये 50,000 आया कहाँ से, जबकि 50,000 डिपॉजिट हुआ होगा तो ही, ठीक है। तो बैंक में जाने के लिए वो हमारे लिए आउटफ्लो है। ये तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, कैश का आउटफ्लो। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हम कैश और बैंक दोनों एक ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये बात हमें समझनी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक ये इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के लिए आपको थोड़ा समझाती हूँ आसानी से। तो ये इंक्रीज इन करंट एसेट एक्चुअली आपका आउटफ्लो, इसलिए वो माइनस होता है, राइट। फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स का उसका उल्टा ही होगा इनफ्लो। आप इतना तो समझ पाएंगे, ठीक है। अभी सभी उनके उल्टे ही होते हैं, लेकिन हम एक दफ़ा समझ लेते हैं कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का था, 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी हमने बेच दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास रहा कितना, 50,000 का ही प्लांट एंड मशीनरी रहा। तो ये जो डिक्रीज़ हुआ क्यों हुआ, ये हमने सेल किया, ठीक है ना। और सेल किया तो हमें कैश रिसीव हुआ होगा, ये हमारा इनफ्लो बन गया। इस वजह से डिक्रीज़ इन करंट एसेट, सॉरी ये करंट एसेट्स का उन्होंने यहाँ पे तो मैं हर एक एसेट्स का बोल देती हूँ क्योंकि ये आपको आसानी रहेगी, ठीक है। आगे इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग में भी आपको हर एक एसेट पूरा बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने करंट एसेट्स की बात की है क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, और उसमें जब इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो नेट प्रॉफिट में हमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करना रहता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ उन्होंने करंट एसेट बोला है। लेकिन आगे आपको ये नॉर्मल एसेट्स में भी समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने कोई भी एसेट का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। तो हम मानते हैं कि ट्रेड पेएबल से आपका 1 लाख का था, अभी आपने परचेज़ किया, ठीक है, और वो क्रेडिट पे परचेज़ किया 1 लाख रुपीज़, तो और एक आपका 1 लाख बढ़ गया और ये आपका ट्रेड पेबल्स एट द ईयर एंड 2 लैक्स हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये बढ़ावा हुआ। तो क्या आपका पैसा चला गया? नहीं, आपने पेमेंट तो किया ही नहीं है, परचेज क्रेडिट पे किया है, तो ये एक्चुअल में आपका इनफ्लो हुआ, ठीक है ना। ये जो 1 लाख है कि अभी गया नहीं है भाई, अपने पास रिटेन्ड है, ठीक है ना, ये पैसा तो इस तरह से ये आपका एक तरह से इनफ्लो हुआ। आप अगर बात करें ट्रेड पेबल्स की बात ना करें तो और कोई बात करें कि मान लो लोन है, ठीक है, लोन आपका 1 लाख का था और अपने दूसरा एक लोन लिया, दूसरा 1 लाख का, तो ये आपका कुल मिला के 2 लैक्स हुआ। अब ये जो इंक्रीज़ आया तो आपके ये लोन और भी 1 लाख का लोन लिया, इसलिए आपको कैश रिसीव हुआ, ठीक है, कैश इनफ्लो आपको हुआ, ठीक है। तो जब भी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है तो एक्चुअल में आपके लिए वो इनफ्लो रहता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़, तो एक्चुअल में वो आपका इनफ्लो है। और उस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा, डिक्रीज़ वाला पोर्शन, राइट। जैसे हम बात किए थी लोन की, तो लोन था आपका 1.5 लाख का और आपने 50,000 का रीपेमेंट कर दिया, तो अभी आपका लोन रहा सिर्फ 1 लाख। तो जो ये डिक्रीज़ हुआ क्यों हुआ, क्योंकि आपने रीपेमेंट किया मतलब आपने कैश पे किया, ये आपका आउटफ्लो हो गया, ठीक है। सो इस वजह से आपका आउटफ्लो हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ करंट एसेट्स नहीं, हर एक एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का एक दफ़ा दिमाग में अच्छे से बैठ गया, दैन इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू प्रिपेयर योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितना भी टिपिकल सम आ जाए, इससे आगे कुछ नहीं, अगर ये समझ आ गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर से आपको पूरा अकाउंट प्रिपेयर कर लेने का। अगर कोई अलग से एडजस्टमेंट्स है तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे मान लो ट्रेड पेबल्स का एग्जाम्पल लिया, अगर कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो ट्रेड पेबल का इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से आपको इफेक्ट दे देने का है। एसेट की बात करें तो एसेट में अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है या फिर डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा एडजस्टमेंट दिया हुआ, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो भी एसेट है आपका, डेप्रिसिएशन है उसका, और उस हिसाब से आपको नेट इफेक्ट देखने होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट प्लांट एंड मशीनरी का इंक्रीज डिक्रीज दे गया है, तो आप उसको परचेज सेल लेके आप उसको इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ आपका एडजस्टमेंट्स। अभी आगे बात कर लेते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। सो ये हुआ पूरा आपका ऑपरेटिंग। आई होप कि आपको ऑपरेटिंग अच्छे से समझ में आ गया है। अभी बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन से आएंगे, जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, फिर फिक्स एसेट्स का आपने परचेज़ किया, सेल किया, वो सभी यहाँ पे आएगा। तो उस तरह से जो भी आपका इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, जो ऑपरेटिंग में कंसिडर नहीं हो रहा है, कैश इक्विवेलेंट्स में कंसिडर नहीं हो रहा है, वो सब यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा।
बात करते हैं फिनांसिंग एक्टिविटीज़। तो फिनांसिंग एक्टिविटीज़ जो भी आपका चेंजेस आ रहा है ओनर्स का कंपोजिशन एंड साइज ऑफ ओनर्स कैपिटल में, तो वो सभी यहाँ पे कवर होगा। चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, बोरोइंग्स हो, ठीक है, डिबेंचर्स, लोन, तो ये सभी यहाँ पे कवर होगा। अगर आपने डिविडेंड पे किया आपका शेयर कैपिटल पे, तो वो भी यहाँ पे मतलब कवर होगा। आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया, यहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है, आपने रिडम्पशन किया डिबेंचर्स का, यहाँ पे कवर होगा। लोन रिपे किया, यहाँ पे कवर होगा। तो ये पूरा आपका फिनांसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। उन्होंने यही सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। इस तरह से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने रिफ्रेश करवा दिया। अभी जल्दी से हम प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस के तौर प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस पे आगे बढ़ जाते हैं, राइट। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा पेज मूव कर लो। सी योर फर्स्ट illustration is Intelligent Limited is a non-financial company and they have given you following items and they seek your advice for preparing cash flow statements। अभी उन्होंने बोला है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू फॉलोइंग। इन सभी पार्टीज़ को लोन्स एंड एडवांस दिया हुआ है और उस पर उन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया है, तो क्या बोलेंगे उस सभी को, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू सप्लायर्स। देखिए सप्लायर्स आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रिलेशन में आएगा, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। फिर एम्प्लॉयज़ की बात करें, अगर आपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, एम्प्लॉयज़ आर अगेन योर मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप उसके हेल्प से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमने सैलरी पे किया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो एम्प्लॉयज़ के रिलेशन में कुछ भी है तो वो आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो जाएगा। फिर सब्सिडियरी कंपनी, अभी ये सब्सिडियरी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक। यहाँ पे देखिए सब्सिडियरी होता क्या है कि आप कोई होल्डिंग कंपनी हो जिसने सब्सिडियरी में होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अभी सब्सिडियरी में आपका इन्वेस्टमेंट है, शेयर कैपिटल के द्वारा आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। वहाँ पे आपने 51% से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, तब जाके आप होल्डिंग कंपनी बने हो। तो अपनी सब्सिडियरी में आपने उस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है शेयर कैपिटल को होल्ड करके, तो ये एक्चुअल में आपका एक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। सब्सिडियरी कंपनी के हिसाब से जो भी आपका कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होगा वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। अर्न डिविडेंड रिसीव्ड, उस पर से आपके इन्वेस्टमेंट में आपने शेयर कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, अगेन इट इज़ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, ये आपका एक्चुअल में फिनांसिंग एक्टिविटी है। आपने शेयर कैपिटल इश्यू किया था, उस पर आपने डिविडेंड पे किया, तो ये आपका फिनांसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। फिर बात करते हैं TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इंटरेस्ट इनकम हुआ, उस पर आपका TDS डिडक्ट हुआ, तो ये एक्चुअल में आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। फिर TDS ऑन इंटरेस्ट अर्नड ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर्स, आपने इंटरेस्ट इनकम रिसीव किया है सप्लायर को लोन देके और वहाँ पे आपका TDS डिडक्ट हुआ, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा, ठीक है। फिर अगेन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स बाय फायर। सी एक्चुअल में फिक्स एसेट की बात आती है तो आपको इतना समझ आ गया कि फिक्स एसेट है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्लासीफाई होगा, राइट। तो आपका फिक्स एसेट्स जल गया है फायर में और आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है और जो भी आपका लॉस हुआ है, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। जनरली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि हर साल आग लग गई, हर साल आग लग गई, फिक्स एसेट जल गया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये सेपरेट लाइन आइटम बताना पड़ेगा कि ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये हर साल नहीं होने वाला है। यहाँ से जो भी रिसिप्ट हुआ है वो हर साल आपको नहीं आएगी, इस वजह से आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना रहेगा, राइट। सो ये आपका पूरा इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व हो गया। थोड़ा सा थियोरेटिकल था, आगे सभी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 2 पे, है।
इलस्ट्रेशन 2 में उन्होंने बोला है कि ये आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं अजय लिमिटेड का, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम्स इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सी अभी आपको बैलेंस शीट के हर एक आइटम का स्क्रीनिंग करना रहेगा। स्क्रीनिंग कैसे? सी शेयर कैपिटल है, स्टार्ट ऑफ द ईयर में 5 lakhs था, एंड ऑफ द ईयर में 5 lakhs है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, तो यहाँ पे ना ही कोई कैश मूवमेंट है, मतलब ना ही कोई इंक्रीज़ है ना ही कोई डिक्रीज़ है, यहाँ पे कोई कैश मूवमेंट हुआ नहीं है, वो स्टैग्नेंट है, तो ये आपके कैश फ्लो आइटम में दिखेगा नहीं। नेक्स्ट बोलते हैं 15% डिबेंचर्स। 5 लाख ओपनिंग बैलेंस था, अभी 7.5 लाख हो गया, तो कुछ तो हुआ है। ठीक है, अभी हुआ क्या है, आपने इश्यू किया है, ये आपका बैलेंस बढ़ गया, मतलब आपने डिबेंचर्स इश्यू किए हुए हैं, राइट। आपने डिबेंचर इश्यू किए मतलब आपके पास पैसा आया, सो ये आपका इनफ्लो होगा 2.5 लाख रुपीज़। लेकिन एग्जैक्टली 2.5 लाख नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम आगे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू किए हुए हैं, सो वो वाला पोर्शन हम पहले देखेंगे, फिर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। फिर देखते हैं कि अनपेड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में इतना अनपेड रह गया है, तो एक्चुअल में डिबेंचर्स ओपनिंग बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट पे करना रहता है। 5 लाख के 15% आपका 75,000 होगा। ठीक है, अभी 75,000 में से 5,000 अनपेड रह गया है, तो आपका 70,000 कैश आउटफ्लो हो जाएगा, राइट। आई होप यू आर वेरी क्लियर, ये आपका 70,000 कैश आउटफ्लो हो जाएगा, राइट। फिर हम बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 90 है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट आपका कितना है, रिपोर्टिंग पीरियड का 40,000, तो वो तो आप समझ सकते हैं। फिर बाकी रहा गुडविल, एसेट साइड पे अब आ जाते हैं। गुडविल है आपका, गुडविल 1,50,000 था, अभी सिर्फ 90,000 है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका अमोर्टाइजेशन हुआ रहेगा, ठीक है ना, आपका अमोर्टाइजेशन हुआ रहेगा। 1,50,000 माइनस 90,000 कैसे हुआ, तो ऐसे मानो कि आपका गुडविल ओपनिंग बैलेंस 1,15,000 था, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस 90,000 है। सी ये रहा आपका गुडविल अकाउंट, ओपनिंग 1,50,000 डेबिट साइड, क्लोजिंग 90,000, ये आपका कैरी फॉरवर्ड, ये आपका ब्रॉड डाउन। सो यहाँ पे जो भी फिगर है वो आपका पीएनएल में गया होगा एज अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, जो भी आपका डिफरेंस आ गया 25,000, ठीक है, तो ये आपका पीएनएल में गया हुआ है, तो ये आपका नॉन कैश आइटम है। आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, उस वजह से आपको इनडायरेक्ट मेथड प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड के तौर पर ये आपका नॉन कैश आइटम आपका नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होगा, ये नेट प्रॉफिट में माइनस हुआ होगा। आप पीएनएल साइड इतना सोच सकते हैं कि आपका मानो कि ये आपका पीएनएल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक पीएनएल थोड़ा सा, सी ये आपका पीएनएल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑफ गुडविल आया हुआ होगा 25,000, ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट 40,000 है, वहाँ पे वो रिड्यूसिंग इफेक्ट में था, तो यहाँ पे मुझे ऐड बैक करना रहेगा। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, पहले 90,000 था, अभी 1,15,000 हो गया। हमेशा डिस्काउंट अमोटाइज होता है तो वो रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ गया, मतलब मैंने आपको वहीं पे बोला कि यहाँ पे डिबेंचर्स इश्यू किए हुए हैं, राइट, यहाँ पे डिबेंचर्स इशू किए हुए और वो डिस्काउंट पे इशू किए हुए, सो आपको अभी समझ आएगा, राइट। अभी डिस्काउंट का एक हम पूरा बना लेते हैं अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पहले 90,000 था, अभी 1,50,000 है, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ। सो यहाँ पे कुछ पीएनएल में भी गया होगा, वो लोग बोल रहे हैं कि इफ़ डिस्क्लोज, वो लोग बोले
You are required to prepare your cash flow statement if discount on issue of debentures amounting to 10,000 has been written off. मतलब कि 10,000 PNL में गया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 10,000 PNL में गया है, तो आपका ये PNL वाला कितना आया, 10,000। सो ये भी आपको मिल गया। तो ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ से आया, तो ये हुआ 125, ठीक है। ये 90 मतलब 35,000 आपका नए डिबेंचर्स इशू करने पे आपका डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ न्यू डिबेंचर्स, राइट। अभी अपने हमने देखा था कि 5 लाख डिबेंचर्स था, 15% डिबेंचर्स अकाउंट ड्रॉ करते हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 7.5 लाख था। अब यहाँ से डिस्काउंट गया होगा 35,000, ठीक है। सो आपका ये हुआ 7.5 लाख और ये आपका ओपनिंग हुआ 5 लाख। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना आया था, आपने हमने पहले ही कंप्यूट किया था, मैंने बोला था ये पूरा का पूरा नहीं जाएगा, 2,50,000, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि क्या 2,50,000 नहीं वो इश्यू हुआ है, नहीं। सी, मैं डिफरेंस भूल गई थी इसलिए सॉरी, सॉरी 15% डिबेंचर, ठीक है। तो ये हुआ आपका 5 लाख ओपनिंग, यहाँ पे 7.5 लाख क्लोजिंग। तो क्या आप ये बोलना चाहते कि यहाँ पे 2.5 लाख इंक्रीज हुआ, जी हाँ। तो ये 2.5 लाख में डिस्काउंट डिबेंचर्स में अकाउंट में चला जाएगा 35,000, तो बाकी का पोर्शन, ये 35,000 डिस्काउंट अकाउंट में चला जाएगा, तो बाकी का पोर्शन जो रहा वो आपका न्यू डिबेंचर्स होगा। तो उतना आपको रिसिप्ट हुआ है कितना, 7.5 लाख माइनस 5 लाख, 2.5 लाख में से 35,000 चले जाए तो तकरीबन 225 जैसा बचेगा, ठीक है। तो वो आपका रिसिप्ट हुआ है, इनफ्लो है डिबेंचर्स से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये हो गया आपका पूरा सम। अब ये एक दफ़ा आप सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लीजिए। सी, क्लोजिंग बैलेंस 90,000 और ओपनिंग बैलेंस 50,000, तो आपका 40,000 नेट प्रॉफिट हो गया। फिर हमने बोला था गुडविल अमोटाइजेशन हुआ है आपका 25,000। फिर आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10,000 राइट ऑफ हुआ था और 75,000 न्यू डिबेंचर्स पे आपने इंटरेस्ट पे किया, वो सभी हमने ऐड बैक किया। ये PNL के आइटम्स हमने ऐड बैक किए, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स हमने यहाँ पे एडजस्ट किए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पूरा साल का एक्सपेंस तो पूरा ही जाता है, वेदर कैश में पे किया हुआ ना किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये बहुत पॉइंट में ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप देखें कि अभी हमें देखना है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया है। अभी हमें फिनांसिंग एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। तो फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में हमने देखा था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हुआ है और आप इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे प्रोसीड्स आपको मिला था 2,15,000। कैसे, वो सॉरी 2,25 नहीं आएगा, 2,15 आएगा, ठीक है ना। वो 2.5 लाख माइनस 35,000 आपका डिस्काउंट था, तो वो आपका 2,15,000 रिसिप्ट हो गया था, ठीक है। वो भी हमने अकाउंट बना के देख लिया था। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स लेस अनपेड, मतलब 75,000 इंटरेस्ट था माइनस 5,000 अनपेड था, इसलिए ये 70,000 आपका हो गया। और ये आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग। इन्वेस्टिंग से कोई कैश फ्लो नहीं है, इसलिए वो प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। सी, सो यहाँ पे उन्होंने वो सभी अकाउंट्स भी बनाए, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ये भी इलस्ट्रेशन कंप्लीट। मूविंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो बनाना है। आप देख सकते हैं समरी ऑफ कैश अकाउंट आपको दिया हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंट कैश रिसिप्ट दिया हुआ है, डिफरेंट कैश पेमेंट्स दिया हुआ है। तो यू नीड टू प्रिपेयर योर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर योर डायरेक्ट मेथड। सी, क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा आपको डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास नेट प्रॉफिट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, आपको कैश रिसिप्ट सामने से सभी दिख गई है, कैश पेमेंट सामने से सभी दिख गए हैं। सो यू नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विथ रेफरेंस टू योर डायरेक्ट मेथड, राइट। सो आप देख सकते हैं, सी कैश सेल्स है, ये आपका
रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐड करते जाना ही है सब रिसिप्ट्स को और पेमेंट्स को माइनस करना है डायरेक्ट मेथड में, और कुछ नहीं है। तो कैश सेल्स 1,40,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स 1,75,000 प्लस ट्रेड कमीशन, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 50,000। फिर उसमें से कैश परचेज माइनस करेंगे 1,20,000, फिर ट्रेड पेएबल्स 1,50,000 माइनस करेंगे, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 75,000 माइनस करेंगे। इनकम टैक्स भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, धंधा कर रहे इस वजह से आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो ये आपका 30,000 इनकम टैक्स भी वहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बन गया है। जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट है वो तो एक्चुअल में आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और यहाँ पे आपको बुलाया गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्रिपेयर करने को। सो आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर हो गया। लोन फ्रॉम बैंक वो भी फिनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इंटरेस्ट डिविडेंड फिनेंसिंग एक्टिविटी होगा। रिपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फिनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तो वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर हो गया। से आप देख सकते हैं सभी रिसिप्ट्स को ऐड किया है और उसमें से सभी पेमेंट्स माइनस किए। सी कैश सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड कमीशंस, कैश परचेज, ट्रेड पेबल्स, सेलिंग एक्सपेंस, इनकम टैक्स, ये हुआ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। So moving to next illustration, illustration number 4. Here they have said that the following summary cash account has been extracted from your company's accounts records. यहाँ पे भी summary cash account दिया हुआ है। So ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैश रिसिप्ट सामने से दिखा हुआ है, कैश पेमेंट सामने से दिखा हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी इंफॉर्मेशन दिया गया नहीं है, राइट। अभी हमें सिर्फ फिनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पूरा कैश स्टेटमेंट क्लासीफाई कर देना होगा। सी रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, तो ऑपरेटिंग रिसिप्ट में ऐड होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स, कैश इनफ्लो हुआ है, शेयर इश्यू किए, मतलब पैसे आपके कंपनी के पास आए शेयर इश्यू करने की वजह से, तो ये फिनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा। फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने फिक्स एसेट्स बेच दिया, मतलब आपको पैसा मिला फिक्स एसेट से, इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ और वो आपका इनफ्लो हुआ। ठीक है। पेमेंट्स टू सप्लायर्स, आपने सप्लायर्स के पास से माल लिया था, अभी आपने पेमेंट किया, गुड्स तो रिसीव कर दिया, अभी आपने पेमेंट किया, तो ये पेमेंट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है, तो वहाँ का वो आउटफ्लो बन जाएगा। फिर पेमेंट फॉर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसके लिए आपने कोई पेमेंट किया तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा, है। फिर पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, राइट, तो ओवरहेड्स आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ है, तो वो आपका वहाँ का आउटफ्लो हो गया। फिर वेजेस एंड सैलरीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बन गया। टैक्सेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, ठीक है, टैक्सेशन भी उस वक्त। अभी डिविडेंड पे किया, वो शेयर कैपिटल इश्यू करने पर आपने डिविडेंड पे किया होगा, तो वो आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, राइट। फिर रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, अगेन योर फिनेंसिंग एक्टिविटी, आपका बोरोइंग्स है, एंड ये आपका हुआ बैलेंस। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया। आप आगे देख सकते हैं, मैंने आपको ऐसे तो समझा ही दिया है। से पूरा उन्होंने वही चीज़ उसी तरह से बनाई है, आप देख सकते हैं, एक दफ़ा नज़र कर लेना। और ये जो भी नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश आया उसमें, हाँ, ये अब समझ लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि आपका जो भी नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज आएगा, राइट, पूरा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्लस माइनस करके जो डिफरेंस आया, ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का प्लस माइनस करके जो डिफरेंस आया, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और ये आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी का इंक्रीज डिक्रीज बन के है, सभी का आपको अभी टोटल लगाना होगा। ये टोटल लगा के आपको आया नेट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज है, उसमें आपको प्लस करना होगा ओपनिंग कैश, राइट। से हमें कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं उससे आपको देख सके। यहाँ पे ओपनिंग कैश आपको ऐड करना रहेगा, वो ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैश। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आगे आप जब पूरा सम सॉल्व करने बैठे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और फ्रॉम माय साइड मैं आपको ऐसा बोलूँगी, लास्ट में फुल फ्लेज सम्स बहुत अच्छे आए हैं। इसी मॉड्यूल में हम देखेंगे अभी, आप उस फुल फ्लेज सम्स को एटलीस्ट 2-3 सम्स को अच्छे से मतलब देखे बिना पूरा सॉल्व करेंगे अपनी बुक में, राइट।
क्वेश्चन देखेंगे, उसके हिसाब से आप पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा कंपटीशन अपने हिसाब से करेंगे। सी ऐसे मैं आपको समझा दे रही हूँ, आपको समझ में आता जा रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको दिखेगा कि आपको कितनी चीज़ें स्ट्राइक हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। फॉर दैट यू विल सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 सम्स फ्रॉम दिस मॉड्यूल विच आर फुल फ्लेज सम्स, मतलब वहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग तीनों आ जाता हुआ, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों आप सॉल्व करेंगे, राइट। ये आपका होमवर्क रहेगा। So don't forget to do it because it is better for you all, right? Now next illustration, कोई ज़्यादा बातें करने से पहले ही हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे दौड़ जाते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑफ मेसर्स एम&टी लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, मतलब कैश सेल्स ही है, क्रेडिट सेल्स नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, वहाँ पे तो अपने को कोई फिगर मिला नहीं है। Gross profit was 30% for the year, that is gross profit amounts to 3,82,000 समथिंग। तो आपको यहाँ से कैश सेल्स मिल सकता है, कैसे मैम? तो अभी देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कैसे आपको मिल सकता है। उन्होंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है, राइट, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3,82,000। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, 3,82,000 ही है ना, वो देख लेते हैं। हाँ, 3,82,500 है। हाँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लिया है, लिखा है, पहले पूरा सम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो वो उसमें थोड़ा सा होना मत होना। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपने इतना तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो ये कैसे कंप्यूट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। रेशियो आपका कितना दिया हुआ है 30%, राइट, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है 3,82,500। अभी आप यहाँ से सेल्स ढूंढ सकते हैं क्या, अपॉन सेल्स इंटू 100। तो आप इस तरह से आप अपना सेल्स का कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन कंप्यूट सेल्स now. Now you have computed your sales, right? You can compute it 3,82,500 डिवाइड बाई 30%। आपको ये सेल्स का फिगर मिल गया। सेल्स तो पूरा का पूरा कैश सेल्स है, इसलिए आपका कैश इनफ्लो बन जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000। तो ठीक है, वो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अभी आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 4,92,500। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपका आउटफ्लो बन गया। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पे किया तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो रहेगा। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 30,000 इंक्लूडिंग DDT। तो ये आपका बन जाएगा डिविडेंड पे किया हुआ है, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बन जाएगा। बैंक लोन रिपे किया हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, आपका वो फिनेंसिंग एक्टिविटी अगेन हो जाएगा। ट्रेड पेएबल्स एज एट 31st March 2020 एक्सीड द बैलेंस ऑन 31st March 2001 बाय 25,000, नो प्रॉब्लम। ये आपको एक्चुअली तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस बताया, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स का इन्फॉर्मेशन बताया। अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड के तौर पे आपको अपना कैश फ्लो प्रिपेयर करना रहेगा तब आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। पहले हम देखते हैं कि हमें कोई डायरेक्ट मेथड से बनाना रहेगा या फिर इनडायरेक्ट मेथड से, राइट। सो यहाँ पे हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 4,60,000। तो ठीक है, ट्रेड पेबल्स का पेमेंट का अमाउंट आपको डायरेक्टली दे दिया हुआ है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बन जाएगा, ठीक है। अभी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू 65,000, तो वो आपका टैक्स पेमेंट हुआ है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो 7.20 लाख आपका इनफ्लो बनेगा। सी यहाँ पे ध्यान रखना, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट्स आपने 20,000 प्रॉफिट पे सेल ऑफ किया, मतलब 7,20,000 आपका इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। यहाँ पे गलती ना हो जाए,
7.20 लाख आपका इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो रहेगा, राइट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स अमाउंटेड टू 85,000। अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करते हैं तब आपको एडजस्ट करना रहेगा। सो अभी यहाँ पे भी ये हम इग्नोर कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर 2,50,000, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपका आउटफ्लो बन जाएगा, ठीक है, आपका एसेट है। फर्दर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। आपने पूरी डिटेल्स पढ़ी, कहीं पे भी आपको नेट प्रॉफिट का फिगर के बारे में कोई डिटेल्स बताई हुई है? नहीं बताई हुई, इसलिए हमें यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डायरेक्ट मेथड से कंपलसरीली प्रिपेयर करना रहेगा। हाँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मेथड के दी हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट का फिगर कहीं पे नहीं है। वो था, वो ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर था, पहले समझ लेना। नेट प्रॉफिट इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट। तो आप उस हिसाब से पूरा डायरेक्ट मेथड से अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बना लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर फिनांसिंग एक्टिविटीज़, सभी का क्लासिफिकेशन मैंने समझा लिया, इसलिए मैं पूरे स्टेटमेंट में डीप में नहीं चाह रही हूँ, आप उसको पढ़ लेना। मूविंग टू नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन नंबर 6, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सी, इन्फॉर्मेशन देख के लग रहा है कि ये आपका इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर होगा। कैसे मैम, आपने बोल दिया, देखते हैं हम पूरी इन्फॉर्मेशन। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आपका पीएनएल में आ गया, ठीक है। फिर आपको ग्रॉस मार्जिन, ठीक है, आपका प्रॉफिट कंप्यूट करके आपको दिया हुआ है ये 23,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेस टैक्स आपका ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। सो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यू नीड टू प्रिपेयर योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, राइट। नाउ अभी आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको पकड़ने का 23,000 को, उसमें सभी एडजस्टमेंट्स आपको करने रहेंगे। नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स के, इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में गए हैं उस फिगर्स को। ऑल्सो यू नीड टू ध्यान आफ्टर गो थ्रू चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सो अब 23,000 में अभी डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे 37,000, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, ये पेमेंट हुआ है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, राइट। एक्चुअल में ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए ऐड बैक हो रहा है। इंटरेस्ट पे किया, ये आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, इस वजह से आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, ये आपको लेस करना पड़ेगा। रिसीव हुआ है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड, प्रॉफिट के फिगर में ऐड हुआ था, आपको माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे हुआ था, वो प्रॉफिट के फिगर में आपको माइनस हुआ था, अभी आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। देन गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो के फिगर में आपको काम आएगा, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फिगर हो जाएगा, तो वो आपको माइनस करना रहेगा क्योंकि प्रॉफिट के फिगर में आपका ऐड हुआ रहेगा। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो एक्चुअल में वो माइनस हुआ रहेगा आपका प्रॉफिट के फिगर में, आप उसको ऐड बैक कर देंगे, राइट।